Hello, everyone. Welcome to the series of transformation interview. I am your friend, your colleague, your coach, your well-wisher, Deepak. And today I have come up with a very unique first for the time, a couple who have just transformed with Global Fitness Client under my coaching. And today I am bringing them up to share their secret, share their insights, how improving your health with your wife or husband is the best way, the best time to do it. And who can be the best people than the couple who have just recently transformed, massive transformation. I'm sure you must have seen that transformation. अगर नहीं देखा है तो definitely इस interview में आप देख ही लोगे. So with that, please help me welcome the brand new transformed couples, Romil and Aishwarya, onto the screen. Hi Hi, Deepak, Deepak. good evening. हेलो रोमिल, हेलो ऐश्वर्या, आप दोनों बहुत ही गजब दिख रहे हो. Thank you. Thank So are you. you? आप भी एकदम कमाल. And it is a coincidence, all are in blue. Blue. Oh, absolutely coincidence. So Romil and Aishwarya, for all the public, whoever don't know you, can you please introduce both of yourself? Yeah. So please, yeah. So hi all, I am Aishwarya Kulkarni. I am IT professional and I have joined GFC community for my transformation and yes, this is about me. And we are from Amravati. That's great. Romil, about you? Yeah. So myself, Romil Sedani, I am an IT professional based out of Pune and had joined this community for my health transformation. And basically, we both are from Amravati. That's great. वैसे मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं, मेरे पेज पे है. अगर आप पहली बार देख रहे हो, मुझे नहीं जानते हो, तो आई एम one of the senior coach of GFC and I am helping transforming many people. But by primary profession, I am a software engineer, solution architect, currently working with one of the biggest IT company. But in my passion is to improve people's health. First, I transform myself with the GFC solution, and then I decided that I will also help taking this solution to the world, and that is how कहीं ना कहीं हम रोमिल ऐश्वर्या से मिले. सो रोमिल ऐश्वर्या, इसके पहले कभी इंटरव्यू दिया आपने? No, नहीं. this is our first time and we are so excited. And हमने कभी नहीं सोचा था कभी फेसबुक लाइव भी जाएंगे. ये सब सेलिब्रिटी लोगों का काम लगता था, बट आज हम लोग भी एक तरह से सेलिब्रिटी फील कर रहे हैं. सो थैंक यू. That's great. मेरा तो आज तक किसी ने इंटरव्यू लिया नहीं, बट आई एम सो फॉर्चुनेट टुडे to take your interview, and it is a privilege to have you both on to our interview. So would you like to share with the world? मैं सबको बता दूं कि I have been the coach for Romil and Aishwarya both. तो इनके सारे सवालों के जवाब मुझे पता है, but I'm asking those questions for all of you benefit guys, all the public who is watching this live. So Romil, would you like to share कि how did you come to know about GFC and how did you come in my contact? Yeah. So our colleague, मेरे previous company से हमारे colleague थे ईशान. So काफी बात होती रहती थी हमारी ओवर द वर्क, मतलब ऐसी कैजुअल टॉक. मतलब अभी तो मैंने वो पुरानी कंपनी छोड़ दिया है, बट कैजुअल टॉक्स होती रहती थी. देन मैं उनके मतलब स्टेटस वगैरह देखते रहता था कि ही इज इनटू समथिंग, कि हेल्थ रिलेटेड ही इज डूइंग समथिंग. सो वहां से मैंने उनसे कनेक्ट किया, मैंने समझा व्हाट इज जीएफसी ऑल अबाउट, एंड दैट्स हाउ हमें उन्होंने आपका रेफरेंस दिया एंड ऐसे हम आपसे कनेक्ट हुए. मतलब एंड वी आर would say we are lucky to got in connect with you. Matlab, yeah. That's great. Absolutely, I am grateful as well. So, Q, why did you come to GFC? क्या goal था? And would you like to share about that? Yeah, sure. So पहले तो मतलब हमारा ऐसा था कि मतलब हेल्थ पे काम करना था डेफिनेटली. लास्ट ईयर जैसे ड्यूरिंग सितंबर गणपति ही था उस दिन. सो मुझे ऐसा था कि काफी प्रॉब्लम हो गया था एसिड रिफ्लक्स का. आई मीन इन कॉमन टर्म में बोलूँ तो एसिडिटी का काफी इशू हो गया था. सो जैसे एसिड रिफ्लक्स के सिम्टम्स सेम आपके चेस्ट पेन जैसे ही होते हैं. मतलब आपको काफी यहाँ दुखता है एंड आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक ही आने वाला है, जस्ट ऐसा ही था. सो उस दिन मुझे समझ गया कि नहीं, हेल्थ पे काम करना जरूरी है, अदरवाइज इट विल लीड अस टू नोवेयर. एंड फिर समझ में आया कि ये सब चीजें हमारी हेल्थ मतलब वेट के कारण ही हो रही है. जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबका रूट कॉज है
क्या बोलते हैं हेल्थ, ये अपना वेट गेन। और जब मैं लॉकडाउन में, हम वैसे यूट्यूब्स पे कुछ वीडियोस वगैरह देखते थे, ये करते थे वो करते थे, फिर वो कैलोरी वाला बोलते थे कि इतना ही खाओ इतना ही, और मैं गुजराती होके खाने में कम नहीं कर सकता, तो एक दो दिन विल पावर से कर लिया, बट बाद में तो मतलब अपने को खाना तो होना। तो फिर वापस फिर वॉक चालू किया, बट व्हेन आई केम टू नो कि जीएफसी में फिलोसॉफी इट वर्क्स लाइक दिस, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड विद जीएफसी। तो पहले इनिशियली क्या गोल था आप दोनों का? मतलब आप दोनों को एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन करना था या किसी एक का पहले गोल था? हाउ डिड यू स्प्लिट? हाँ, जब आप जीएफसी में आए तब क्या माइंडसेट था? एक्चुअली पहले सिर्फ मैं स्टार्ट करने वाली थी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, क्योंकि मैं 10 kgs ओवरवेट थी और मुझे मतलब देख के खुद को टेंशन आता था कि ऐसे ही अगर मेरा वेट बढ़ता रहा तो क्या होगा। सो पहले तो मैं आने वाली थी, मैं इन होने वाली थी इस प्रोग्राम में, बट आपके साथ जब फर्स्ट कॉल हुआ उसमें हम दोनों मतलब कनेक्ट हुए थे, इसी तरह से हम लोग कनेक्ट हुए थे। एंड जिस तरह से आपने सब कुछ हम लोग को एक्सप्लेन किया तो हमको लगा नहीं, दोनों करेंगे। ऑब्वियसली जरूरत तो दोनों को, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम दोनों की है और हमको पता है कि इतने दिनों से एक्सरसाइज नहीं है और ये सब है, इश्यूज पता हो गए थे आपके कॉल में आए थे तब। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, करेंगे दोनों ही और एक साथ करेंगे तो इट विल बी बेटर। एंड दैट्स गुड। हाँ, बेस्ट थिंग वो लगी हमें कि वेट लॉस करना इज नॉट आवर गोल, वी हैव टू इम्प्रूव आवर, आई मीन जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है वो इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक वेट लॉस होना ही है। सो अंदर से जो हीलिंग हुई, वो जो इफेक्ट दिख रहा है आज के तारीख में, दैट इज, आई मीन वी कैन से वी आर वेरी फॉर्चुनेट। मतलब वी केम विद अ माइंडसेट कि हमें वेट लॉस करना है, वी डिडंट केम विद अ माइंडसेट कि हमें अंदर से पूरा हील होना है। बट या वी वर लकी कि हमें अंदर से हीलिंग हुई तो ऑटोमेटिक वेट लॉस तो बाय प्रोडक्ट हो ही गया, मतलब। that's great. So you got to know about these root cause of health issues after coming into the first consultation with me. राइट राइट। All good. So सबके whenever I see these guys before photo, मैं सच में बिलीव नहीं कर पाता कि यही लोग हैं. But because I saw them before transformation, I can still visualize ये कैसे दिखते होंगे. But for everyone's benefit, I'll show their transformation, how they used to look. Here is Aishwarya. This is their transformation, and you can absolutely see the major problem Aishwarya had, apart from the obesity, was her respiratory issues. I'll ask her about that problem. Aishwarya, would you like to share about that problem? यस दीपक, सो वेट लॉस, सॉरी, वेट ओवरवेट तो एक इशू था, बट मेजर जो मैं रोज सफर करती थी सुबह उठने के बाद वो था फ्रीक्वेंट स्नीजिंग। मतलब उठते बराबर मुझे बहुत स्नीजिंग होता था और कफ मतलब होता था बहुत ज्यादा। तो ये इशू मतलब मैं आई थिंक ग्रेजुएशन या उससे पहले से फेस कर रही थी, मतलब प्रोलॉन्ग, मुझे याद भी नहीं कितने ईयर्स से मैं ये इशू मतलब यूज टू ही हो गई थी एक तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। बट इस प्रोग्राम के वजह से मतलब वो रूट आउट हुआ है। एंड टचवुड, मतलब जो मैं खाने को डरती थी, जैसे आइसक्रीम खाने के मैं 10 बार सोचती थी पहले, बटर मिल्क के लिए तो मैं मतलब दही से बनी हुई कोई भी चीज मतलब ऐसा दूर ही रखती थी, इच्छा हुई तो भी नहीं खाती थी। बट ये सब उससे मुझे फायदा हुआ है। आज कितने बार, अब डेली कितने बार पीते हो बटर मिल्क? अब तो मैं 2 ग्लास भी पी लेती हूँ तो मुझे कुछ होता नहीं है, तो ऑल गुड. टचवुड। अच्छा, बाय द वे, आपने ये एल साइज कपड़ों को किया क्या? रखा हुआ है ये सोच के कि दोबारा शायद वेट बढ़ जाएगा उसके लिए, या क्या किया? नहीं नहीं, वो सबसे खुशी की बात होती है ना कि आपको पहले के जो एस साइज के कपड़े थे वो होने लगे, तो एल साइज से वैसे भी नफरत थी लेते टाइम में। ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं उस पे। पता था कहीं ना कहीं जाना तो है वापस पुराने मोड में। Absolutely. You guys have been committed from day one. आपकी sincerity has been commendable. So वो जाना definitely था ही, उसमें कोई doubt नहीं था. Robil, you would like to share about obesity? तो दिख ही रहा है, मतलब इतना massive 22 kg overweight कैसा लगता था, मतलब अपने आप को ऐसे before वाले वर्जन में देख के? मतलब वही, मतलब जब मैं मिरर में देखता था तो आई वाज लाइक कि मैं क्या, मतलब क्या हो गया हूँ, मुझे इस पे काम करना है। तो फिर मतलब ये सब यूट्यूब पे देख के थोड़ा बहुत, लेकिन वो खाने वाने वो कम बोलते थे तो जमता नहीं था, मतलब फिर खाना तो होना, उसके बिना काम होता नहीं था। तो फिर सोचा अब एक्सरसाइज पे काम करते हैं।
तो जब लॉकडाउन काफी था, मतलब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ करता था, तो मैं वॉक वगैरह करता था। मतलब वो इतना एक्सटेंसिव नहीं था, हार्डली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर जब थोड़ा लॉकडाउन ईज हुआ तो मैंने देखा कि नियर बाय मेरा एक मतलब जो मुझे बचपन से खेलना था टेनिस वगैरह, तो वो नियर बाय एक क्लब था एंड मैंने ज्वाइन किया। तो वहां पे भी मैं जब खेलने जाता था तो ज्यादा खेल ही नहीं पाता था, हार्डली 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा मैक्स हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो 1 घंटा मैक्स। बट जो थकान दिन भर रहती थी आने के बाद, तो वो मतलब कुछ तो गलत हो रहा था बॉडी में। और फिर समझा कि एक्सरसाइज अकेले से तो सब चीज नहीं होंगी। फिर जब मैंने ईशान से बात की, तो जब उन्होंने बताया, मतलब जो एक हाई लेवल बताया था कि आप जीएफसी में वी वर्क ऑन 4 पिलर्स, तब समझा कि मैं एक ही पिलर पे काम कर रहा था, नॉट ऑन दी अदर 3 पिलर्स। तो वहां पे मेरी चेयर उतनी स्टेबल थी नहीं। तो अब आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, मैं 2 घंटे भी टेनिस खेलने गया ना, दिन भर एनर्जी लेवल मेरी हाई रहती है। मतलब मैं 2-2 घंटे खेल के आता हूँ रोज अभी, और मुझे कुछ अब तो नहीं लगता। अब तो तुम दिन भर खेल सकते हो, आई हैव नो डाउट ऑन दैट। So Romil, would you like to share about ki when you got to know that you are pre-diabetic? Uh, Share that moment. कैसा feel हुआ? I remember, but for the people, what happened? Yeah, so I still remember that day कि when we joined this program and आपने suggest किया था, मतलब good to have, मतलब you didn't force us कि reports कर ही लो। बट हमें लगा था कि नहीं, I mean, अगर हमें पता है कि कौन से एरिया में हमें काम करना है तो दैट वुड बी बेटर। और मैं कॉन्फिडेंट था यार, अपने का तो सिर्फ वेट ही आने वाला है, बाकी तो सब अपना हाँ, सही चलने ये वाला है, उसमें तो कोई confidence ये था ही नहीं, दो डाउट ही नहीं था मतलब। फिर रिपोर्ट्स जब आई, तो एक तो पहले जब हम टेस्ट करने गए तो तब वो कोविड का भी थोड़ा चल रहा था, तो आई वॉज रिलक्टेंट कि वहां जाके, मतलब वो जो माइंडसेट था कोविड 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 हर जगह, तो मैंने नहीं, तो मैंने टेस्ट तो कर ली। फिर मतलब बस अपना थोड़ा बहुत एक दो कुछ डेफिशिएंसी आएंगी, बस बहुत हो गया, अपना उतने में हो जाएगा। लेकिन जब एक्चुअल रिपोर्ट आई, तो आपको भी आई गेस यू रिमेम्बर माय रिएक्शन कि भाई मैं कैसे प्री डायबिटिक हो गया, मतलब हाउ हाउ इट इज दैट पॉसिबल। फिर जब आपने उसका रूट कॉज समझाया कि इससे क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं, अब हमें हीलिंग करना पड़ेगा खुद का, तब जाके सब काम होगा। सो स्टिल और जब एक्चुअल में मेरा वापस नॉर्मल आ गया, सो आई वाज सो हैप्पी, आई मीन। All great. I remember हमारा first review call था after starting on level 1. So people who don't know about GFC program, we have 10 levels. We start with level 1, and every single week it provided you are comfortable with the earlier level, we keep changing the levels. So they did the test in the first week, and first review call में they came. I still remember those words. मैंने पूछा how are you guys? तो Romil says कि report आने तक तो ठीक था, बट उसके बाद एंड ही वाज स्पीचलेस, एंड आई मेड हिम कंफर्टेबल. So instead of me telling people about the root cause of this pre-diabetes bolo, obesity bolo, or these are all metabolic disorder. So anyone of you would like to share this one? Because guys, all the people who are watching this interview, GFC doesn't just transform people. We believe in educating people about their health issues, so that if they become educated about their health, about their food, about their nutrition, about their exercise, all the reasons why all this happens, you can take care of your health for lifelong. That is why we want what we want. We don't want your dependency on us. We want your health in your own hand. So would anyone of you like to share what are the root cause of all the metabolic disorders? Yeah. So first is, I mean, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जो रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब हमारे बॉडी में इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है, एक हार्मोन है। सो वो एक उसका एक रूट कॉज है कि जो इंसुलिन का काम होता है कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, और जब वो नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करता है, जो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में। सेकेंड इज आई वुड से टॉक्सिसिटी, जो हम खाते हैं, और आज जिस तरीके से फार्मिंग वगैरह होती है, राइट, मतलब वी डोंट नो कि कैसी, और हम हमारे घर पे खेत तो नहीं लगा सकते हर चीज के लिए कि चेक करें भाई इसने क्या किया क्या नहीं किया। तो वो जो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स है वो हमारे बॉडी में भी जा रहे हैं, राइट। सो वो थर्ड है। थर्ड इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो हमें खाने से मतलब मिल रहा है,
बट अब जो बनता है और जहां हमें मिलता है, मतलब यहाँ घर पे आने तक जो लॉस होता है न्यूट्रिशन का, तो उससे मतलब जो 20% रह जाता है, वुड से 10%, 20%, सो वो छोटा 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 होके बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, अफेक्ट करता है बॉडी को. एंड फोर्थ इज दिस, अपना एक मैकेनिज्म जो होता है, जो हमारे खुद के बॉडी में बैड सेल्स, मतलब ये होता है, वो हमें उसे ऑटोफेजी कहते हैं. मतलब तो वो ट्रिगर नहीं होता है बॉडी में, बिकॉज कि हमारी बॉडी ऑप्टिमम लेवल पे काम ही नहीं कर रही है. नहीं तो हमारे इंटरनली हमारे बॉडी के पास इतना पावर है कि वो अपने आप को हील कर सकती है. बट उतने लेवल पे लाने के लिए बॉडी को वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे ऑर्गन्स ऑप्टिमम काम कर रहे हैं. सो ये रूट कॉज हमें जब समझे कि ये चीज है, तो अब हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाउ आवर बॉडी वर्क्स. मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि हमें पूरा ही साइंस पता है, बट बेसिक चीजें जो हमें ध्यान रखना चाहिए. Absolutely. So, just to summarize, what are the root cause of problems like obesity, metabolic disorders like BP, diabetes, thyroid, PCOD, PCOS, cholesterol, and all these problem ka jo root cause, there are 4 root cause of health issues, metabolic health issues. First is your food, your nutrition gap, your second is your insulin resistance in the body because of the imbalanced diet you have been eating from childhood. ये 1-2 साल की पहले की प्रॉब्लम नहीं है guys, it has started long back. Third is toxicity in the body, जितना कचरा, जितना केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो बॉडी में जा रहा है, इट इज क्रिएटिंग दैट टॉक्सिसिटी, जहर जो बॉडी में अंदर जा रहा है. एंड फोर्थ इज योर इनफिशिएंसी ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स. सो योर बॉडी ऑर्गन्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, दे बिकम इनफिशिएंट. एंड डिपेंडिंग अपॉन आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन, कौन सा ग्लैंड कमजोर पड़ता है, उसके हिसाब से आपको बॉडी में प्रॉब्लम चैलेंजेस होने लगते हैं. एंड उसका सिम्टम is the obesity जो फैट बॉडी में गेन होता है. I want you guys to touch upon the fifth root cause, which is the stress. Any one of you like to share that ki how stress contributes towards the health issues? What you learned in this program? So yes, Deepak, I would like to answer this. Stress का मतलब मुझे लगता था कि मतलब ऑफिस वर्क तो चल रहा था साइड बाय साइड, और ओबेसिटी बढ़ रहा था ये सब, लेकिन कभी हमने उसको रिलेट नहीं किया था कि ये स्ट्रेस की वजह से भी इस पे असर हो रहा है. फूड हैबिट्स तो नहीं थी सही, जंक फूड खाना ये सब तो हो ही रहा था, बट कभी ये नहीं पता था कि स्ट्रेस की वजह से भी इस पे अफेक्ट हो रहा है. तो हम लोग जब आपके साथ कॉल में आपने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो फिर हमको क्लिक हुआ कि हाँ यार, ये तो मेजर है. रोज ही कहीं ना कहीं हम लोग इतने टाइम तक ऑफिस आवर्स में या फिर उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस में रहते हैं. तो हाँ, ये तो है, होगा ही इसका रीजन फिर. और मतलब इस पे जब काम किया हमने, मतलब मेरे लिए आपने स्पेसिफिकली मुझे याद है आपने सजेस्ट किया था कि उठे बराबर, मतलब इवन बिफोर बेड से उतरने से पहले भी आपको प्राणायाम कर लेना चाहिए, तो इट विल काम योर नर्व्स. तो इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आपने कहीं ना कहीं मतलब इनपुट्स देते रहे, और वो जैसे जैसे टाइम गया हैबिट बिल्ड होती रही. उसके बाद आपने हमारे मतलब चॉइसेस के हिसाब से जो बुक रीडिंग सजेस्ट किया था, तो ऑलरेडी हम लोग, मतलब मैं बुक्स पढ़ती थी, बट इस सब में छूट गया था वो ऑफिस का काम और ये सब में. बट वो हैबिट भी मैंने फिर से डेवलप की, और मतलब अब ऐसा होता है कि ऑफिस आज के बाद मैं कट हो जाती हूँ, मतलब उसका स्ट्रेस मैं आगे कंटिन्यू नहीं करती हूँ. तो ये सब भी आपसे ही सीखा है. तो यस. I still remember you came on that one review call and said कि दीपक, मुझे ऑफिस का बहुत स्ट्रेस हो गया. I was not able to follow the exercise and diet for the last 1 week because of office challenge. And I still remember that conversation of around 1.5 hours when I helped you with the mindset. So guys, in short, that stress plays a very big role in your health issues, metabolic health issues, obesity. Definitely, there is some link with the stress management. And as we helped with some of the habits which helped Romil and Ashara, which they mentioned about, actually help them to reduce down their stress. So Romil, you were talking about the 4 pillars where we worked upon. Would like to share what were these 4 pillars जिस पे हम लोगों ने काम किया? Right. So basically, first is your food habits and food improvements.
मतलब आई डोंट कॉल इट डाइट बेसिकली, सिर्फ खाना सब, मैं तो खा तो सब रहा था, मैंने तो आपको पहले ही बोला, इवन अभी इंटरव्यू में मैं पी रहा हूँ कुछ, मतलब भूखा तो नहीं रह सकता मैं। सो खाना पीना तो गुजराती होके तो मैं रहेगा। तो मैंने फूड इम्प्रूवमेंट किया मेरे, मतलब जो खा रहे थे सही तरीके से खाना चालू किया उसको। सेकेंड इज जो मेरा न्यूट्रिशनल इंटेक जो डेफिशिएंसीज थी, सो उस पर मैंने काम किया। सो सेकेंड इज दी सेकेंड अपना क्या बोलते सॉल्यूशन, मतलब फोर सेकेंड पिलर आई वुड से। एंड मैं अभी आपसे और एक चीज, मतलब आज ही मुझे पता चला कि मेरे मॉम का जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी था, व्हेन आई स्पोक टू यू राइट, सो उन्हें एक प्रॉब्लम हुई करती थी, आंख उनकी बार बार ये होती थी। सो जब से मुझे अब समझ में आया कि बॉडी कैसे थोड़ा बहुत फंक्शन कर रही है, तो जब उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे काम किया तो आज मेरे मॉम बोले कि उनका वो बंद हो गया है। आज ही उन्होंने बताया, सो आई वाज सो हैप्पी, मतलब कि। और सेकेंड इज आपको मैंने बताया था राइट कि उनका भी एक्सीडेंट हुआ था, एंड शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड थोड़ा हाथ का। सो जो न्यूट्रिशनल इंटेक वो ले रहे हैं उससे उनका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब इवन शी वाज सरप्राइज कि इतने जल्दी कैसे हो रहा है। So she was very happy, and I'm very happy to share this with you. So yeah. I'm sure आंटी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे लाइव, सो Yes. थैंक यू सो मच आंटी फॉर फॉलोइंग अस, एंड आई एम श्योर आपकी आंखें और दिन ब दिन अच्छी होती जाएंगी और आपके बोन हेल्थ भी अच्छी हो रही है. So would like to share about remaining two pillars. What were those Sure, two sure. pillars? Yeah. थर्ड पे तो ऐश्वर्या ने टच अपॉन कर दिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब लोग क्या करते हैं, डोंट फोकस ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, बट दे फॉरगेट कि स्ट्रेस भी एक रोल प्ले करता है आपके बॉडी के फंक्शनिंग पे। एंड फोर्थ इज एक्सरसाइज, मतलब उसके बिना तो कोई वो नहीं है, मतलब। तो मेरी एक्सरसाइज तो मैं बोलूँ, मैं खेल इतना 2 घंटा बहुत हार्ड वर्क करता हूँ तो हो ही जाती थी एक्सरसाइज। या so these are the four pillars of GSC. I would summarize once again: food improvements, food habits. Second is nutritional intake, organic nutritional intake. Third is stress management, and fourth is exercise. Absolutely well summarized, Romil. So जो फर्स्ट पिलर के ऊपर आप बात करते हैं, आई लाइक योर लाइन, आई डोंट कॉल इट दैट. ये मेरी वैसे लाइन है, आपने चुराई है, बट दैट्स गुड टू सी दैट. सो नेवर एवर कॉल गाइस डाइट, बिकॉज डाइट अपने आप में ना हर सोसाइटी में बदनाम कर दिया है. तो डाइट का मतलब होता है, लिटिल मीनिंग होता है स्पेसिफिक वे ऑफ ईटिंग. सो वॉट एवर स्पेसिफिक वे, चाहे आप बहुत सारा खा रहे हो, दिन भर खा रहे हो, चाहे बहुत कम खा रहे हो, लिमिटेड खा रहे हो, एवरीथिंग इज डाइट. सो फूड इम्प्रूवमेंट, दैट्स व्हाट वी कॉल. एक्चुअली जो इंसान को खाना चाहिए था वो हम खाते हैं. दैट इज व्हाट वी इन जीएफसी वी बिलीव इन. And I'll come to the nutrition part later. We have got actually so many questions from so many people. So I wanted to take one of the questions wherein someone has asked about ki they are vegetarian. So how would this GFC diet work for them? होगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? Would you like to share with your experience about on this question? So I mean वेजिटेरियन जैसे सॉरी आप वापस क्वेश्चन बोलेंगे, मतलब क्या पूछा था उन्होंने? So if they are vegetarians, so would this diet work for them or not? या उनको challenge problem आएगा? Yeah, I mean, so We even are we are also vegetarian, so हम अगर कर लिए तो I guess उनको भी कोई difficulty नहीं होना चाहिए. So would you like to share कि मतलब there's just a perspective of how does this diet help either non-vegetarian more or vegetarian more? What was your understanding throughout the journey? कोई vegetarian हो या non-vegetarian हो, how they should look towards the food? So they should not look at the food, मतलब ऐसा कि भाई वो नॉनवेज खा रहा तो उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है. सबको सब न्यूट्रिशन सही मात्रा में मिलता है. इट जस्ट दैट वी हैव टू लुक फॉर दैट पर्टिकुलर फूड. हाँ, चॉइस ऑफ फूड आई वुड से. तो अगर ऐसा रहता था तो वेज लोग फिर जो वेजिटेरियंस है वो लोग वेट कम नहीं कर पाते थे और हमेशा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे रहते थे. Absolutely, so true. So it is not about vegetarian or non-vegetarian, guys. Always, again, I also say that it is not about the dishes. You should actually look into the ingredients of those dishes, be it vegetarian or non-vegetarian, and see. That is what we do in GFC, is that we educate our clients that कि कौन से न्यूट्रिशन की आपके बॉडी में जरूरत है, कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, and basis upon that you actually decide your dishes, what you love,
what you want to do. So Aishwarya, would you like to take another question ki was there a specific कि यही चीज खाना है, ये चीज नहीं खाना है? What were the restrictions in this program? Would you like to share about that? हाँ दीपक, एक्चुअली ये इसकी बेस्ट बात थी कि कभी गिन के नहीं खाना पड़ा और यही खाना है वही खाना है ऐसा कभी नहीं था। तो एक्चुअली मेरा भी इस प्रोग्राम में आने से पहले पर्सपेक्टिव यही था कि यार किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे मतलब जो वो लोग बोल रहे हैं वो खाना पड़ेगा, और ऐसा तो होता नहीं है कि हफ्ते भर में कभी कुछ खा ऐसा चटपटा या कुछ भी बाहर का खाने की इच्छा ना हो। तो मेरा यही पर्सपेक्टिव था, बट यहाँ पे आने के मतलब जीएससी प्रोग्राम में आने के बाद ये पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया और कभी गिन के नहीं खाना पड़ा, वो बेस्ट बात थी। क्योंकि खाना कभी गिन के बचपन से भी नहीं खाया है और मुझे भी इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल लगता है कि कोई गिन के खाना एक कटोरी में डाल के उतना ही राइस लो और फिर खाओ, नहीं ऐसा कभी नहीं था। तो इसकी वजह से हम लोग इजीली इसको कर पाए, क्योंकि मतलब आप ही सोचो ऑफिस के बीच में हम लोग जब लंच करते तो उसमें गिन के खाना है तो और आधा घंटा मुझे लगता है उसमें देना पड़ेगा कि गिन लूं मैं पहले फिर खाने बैठती हूँ। तो नहीं, ये कभी नहीं था। और मतलब जो भी चीजें थी हम अपने पसंद से बना के खा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था मसाले कम डालना, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड आई वुड लाइक टू शेयर अ इंसिडेंट, मतलब 2 इंसिडेंट। सो जब हम वर्कआउट मतलब जब यूट्यूब या XYZ सोर्स से देख रहे थे, so even we planned कि वो वेइंग मशीन लेके आए कि भाई उतना ही कैलकुलेट करके हम खाएंगे। बट थैंकफुली काम नहीं पड़ा उसका। मतलब एक वेइंग मशीन एक्चुअली वैसी शिद्दत घर में क्रिएट करती है कि भी वजन गिनना है, उसके बाद खाने का ही वजन गिनना पड़े तो बहुत दिक्कत है। एंड ट्रूली सेड, या उतना ही ग्राम जाना चाहिए, उतना ही है। तो actually it's not bad. I'm not putting down any particular diet. Everything works, guys, provided that does it match with your lifestyle? क्या आप उसको lifetime, you should ask your question whatever you're doing, can you do this lifetime? If you can do, absolutely go ahead for that program. If you cannot, think how can I make it better, how can I make it easy? It should not be one more challenge. Already जिंदगी में इतने सारे challenge है. This health improvement should not be a challenge, it should be a happiness. एंड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, मैं आज भी नहीं जानता कि एक कटोरी चावल में कितनी कैलोरीज होती है। तो काउंटिंग कैलोरीज इज एब्सोल्युटली नॉट कप ऑफ माय टी एंड एब्सोल्युटली वाज नॉट फॉर Romin and Aishwarya as well. So I would like to move on to the next question. Many people have that, how do you fulfill this nutritional gap? Everyone now in today's world knows कि भाई खाने पीने में सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, and then there are so many options in outside की things like supplements lena. What was your perspective, how you got educated about nutrition in this GFC program, and how you overcome your nutritional deficiency? Would you like to share about that? सो जब हम आपके साथ फर्स्ट कॉल में आए थे, राइट, तो आपने जब हमें 4 पिलर्स पे बताया, सो जब आपने हमें एक्सप्लेन किया कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्या है बॉडी में, मतलब अभी तक हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, मतलब सिर्फ हम वो फोकस से आए थे कि भाई हमें कुछ खाना कम करना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। बट जब आपने बताया तब हमने की सोचा कि नहीं ये चीजें मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग, जब आपने वो एक आपका जो वीडियो शेयर किया कि व्हाई न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, तब जाके हमें समझा कि नहीं दिस इज रिक्वायर्ड, इसके बिना होगा नहीं, क्योंकि वी डू नॉट गेट दी रिक्वायर्ड एंड सफिशिएंट न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड। सो वो कभी गैप फुलफिल ही होना था डेफिनेटली, राइट? एब्सोल्युटली। या आपने जो सजेस्ट किया न्यूट्रिशन, सो वो आप खुद यूज मतलब ट्राई करते हो, मतलब यू जनरली एवरीडे यू टेक इट दैट न्यूट्रिशन, राइट? तो मतलब आपने खुद पे किया होगा तो आप किसी को गलत नहीं बताते हो। So that's what we felt. Right. So yeah, go ahead, Aishwarya. It is completely organic, तो we easily trusted that. पेड़ पौधे से और fruits, flowers से बना हुआ, तो we completely trusted. Right. So I would like to highlight this point that guys, whatever you take, मतलब चाहे अगर आप आटा भी ले रहे हो, that is also kind of a food derived things. So जो भी आप ले रहे हो, it should be natural and organic. Chemical से नहीं बना हुआ होना चाहिए ना. So whatever nutrition, all the people watching this interview, whatever nutrition you want to take, make sure that it is not chemical. It is completely made from natural thing. पेड़ पौधों से बनी हुई चीजें अगर आप खाते हो, so you don't need to worry about, मतलब there won't be any side effects. It should be exactly like कि मैं गार्डन में गया,
मैंने तोड़ के मतलब कोई फल खा लिया, it should be equally same. That is when you can actually take care of your nutrition without actually having any side effect. And at this moment, I would like to recommend everyone who actually wants to understand more about nutrition science, they should at least read this book. This is one of my favorite book. It reads, I don't know, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है. What your doctor doesn't know about nutrition science may be killing you. All doctors are doing great job, but just for everyone's awareness that most of the medical practices is into the disease and symptoms and problems. They are not, no one is expert in nutrition science in that field. So जब डॉक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है न्यूट्रिशन साइंस के, फॉरगेट अबाउट आवरसेल्फ, हमारे पेरेंट्स, हमारा सोसाइटी, एंड दैट इज वेयर वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एजुकेट एवरी सिंगल पर्सन अबाउट किस खाने में क्या न्यूट्रिशन होता है, what is required for your body, what is not required for your body, and depending on that, if you can take your decision कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या कितना खाना चाहिए, that will be the best way to go ahead with the food and nutrition. So let us move on to the next pillar, Romil Aishwarya. Next question is that people say कि हमें जिम ही जाना, कुछ लोगों को लगता है कि यार जिम जाने से ही वेट लॉस हो सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि एक डेडिकेटेड ट्रेनर होना चाहिए, वैसे ही करेंगे तो होगा. व्हाट वे योर एक्सपीरियंस इन दिस जीएफसी प्रोग्राम? किस टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस टाइप की नहीं करनी चाहिए? वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दैट? हाँ, फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगा कि मैं जिम नहीं गया ना, ये जिम गई है, तो आपके अपने लाइव एग्जांपल है कि जिम और ट्रेनर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर वेट लॉस. सो जैसे जीएफसी के लाइव वर्कआउट्स होते थे, तो मैं खेलने जाता था तो मेरा वर्कआउट वहां हो जाता था. तो ऐश्वर्या यूज्ड टू डू इट एट होम. मतलब ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको जिम में ही जाना है, घर के बाहर ही जाके कुछ एक्सरसाइज करना है, पर्सनल ट्रेनर हायर करना है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने भी पहले मतलब टेनिस ज्वाइन किया था, बट मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था जितना रोमिल को बचपन से उसका रोमिल का पैशन था, तो इसलिए फिर मैंने एक 3-4 मंथ्स में छोड़ दिया था. बट उसके बाद भी मैं जीएफसी के लाइव वर्कआउट अटेंड करती थी, और जब कभी नहीं होता था, सपोज ऑफिस लेट तक चला तो दूसरे दिन 7 बजे आई वाज नॉट एबल टू, तो मैं जो मतलब लिंक थी ऑनलाइन वर्कआउट की, उसको यूज करके मैं बाद में अपने मतलब शेड्यूल के हिसाब से वर्कआउट कर लेती थी. बट प्राणायाम मस्ट मतलब रोज ही करती थी. And that's why actually, guys, we need a coach who can understand our lifestyle, and then according to those lifestyle or choices or interests, coach should be able to recommend you what you should do. Romil did his workout through doing tennis. He hardly for few days, जब बारिश आ रही थी और एक peak lockdown था, he was not able to go to the court. Those are the only days when he did exercise through the live workout of GFC. Other than that, he has been always been doing tennis. और टेनिस खेलते खेलते ही उसका मतलब रोमिल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. वर्सेस ऐश्वर्या डिड GFC Facebook live workout. Both are transformed absolutely so fit and healthy. So ऐश्वर्या, रोमिल, क्या आज भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है या अब बंद कर दिया आपने एक्सरसाइज? सो It अब has become इंटीग्रल पार्ट हो गया लाइफ का. routine now. मतलब ऐसा कोई धक्का नहीं मारेगा. मतलब अब जैसे अभी बारिश में काफी दिन खेलने नहीं मिला, तो मुझे ही कुछ लगता है दिन भर में कि कुछ तो बॉडी में सही नहीं हुआ है. तो वो एक हैबिट बन गई है. इट्स नॉट लाइक कि हम वो एज अ टेंशन के जैसा करते. एक काम करना जैसे इसलिए. खाना खाना एक पार्ट है दिन का, वैसे एक्सरसाइज भी एक पार्ट हो गया है. मतलब सो ऐसा So क्या होगा अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? मतलब दिस इज ऑल आई एम व्हाटएवर आई एम आस्किंग एज द क्वेश्चन व्हिच आई हैव गॉट फ्रॉम द ऑल माय पीपल पब्लिक. क्या होगा अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो? सो जैसे मैंने 4 पिलर्स आपको बताया, राइट? सो अगर आप एक पिलर आप चेयर के 4 जो ये होते हैं लेग्स, उसमें से एक लेग निकाल दोगे तो क्या होगा चेयर का, राइट? यू विल फॉल, राइट? डेफिनेटली. बट देन समवन हैज कि वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाता. मतलब people might do so too much overweight, 120 130 मतलब वेट होगा, they are not able to move, उनके joints में पेन है. how will this program work for them? Yeah, so first thing I would say, आप प्राणायाम तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि कोई उसका वेट हो. उसे बैठे बैठे, जैसे मैं उठे बराबर 5 मिनट कर लेता हूँ, जैसे ही उठता वैसे 5 मिनट कर लेता हूँ. तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि कुछ वेट का सिनारियो है. सो इवन अब जैसे आप 120 बोले, आई वाज
111, so मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेकेंड थिंग मैं ये बोलूंगा कि ट्राई टू कनेक्ट विथ योर कोच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके लिए वर्कआउट हो सकता है, क्योंकि जनरली व्हाट पीपल डू कि यूट्यूब पे देख लेते हैं एंड दे ट्राई कि मतलब कीवर्ड्स डालते हैं वेट लॉस, इंस्टेंट वेट लॉस फॉर एक्सरसाइज। सो वहां पे जो डिस्कनेक्ट गैप है दैट वी हैव टू फुलफिल, एंड कोच से समझे कि मैं क्या कर सकता मेरे बॉडी के हिसाब से, राइट? Yeah, burn your body fat in 30 minutes. So राइट। all good. So guys, exercise not required for weight loss. Exercise is required to generate two specific hormones in your body. आप देखना कभी भी एक्सरसाइज करने के पहले और बाद में आपका वेट उतना ही होता है. It proves that exercise करते वक्त आपका weight loss नहीं होता है. Actually, your weight loss happens when you are sleeping. When your body is relaxing, that is the time when your body is burning or utilizing your own body fat. Exercise is required for those two hormones to be generated out of those 9 hormones which are responsible for weight gain or weight loss. And it is required always. You should be physically moving. If you stop doing exercises after transformation, you still be fit, you still be fit and healthy, but कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो impact दिखने लगेगा. Sedentary lifestyle again आप जाओगे तो, और focus in GFC is always to build habits of people. And if you have got good habits, आप लाइफ टाइम वो कर पाओगे. You should enjoy, and that is how Robil and Aishwarya has done build their habits, and they are improving every single day with the exercise. They're actually enjoying that. Next question, Robil and Aishwarya, is it really required to have a dedicated coach, या फिर फॉर एग्जांपल किसी ने जीएफसी से ट्रांसफॉर्मेशन है किसी कहीं से भी किया और उसने उसको बता दिया, या तू बताना, ऐसा कई लोगों का होता है ना, या तू मुझे बता दे, छोड़ना कोच क्या करना है, तू मुझे बता दे क्या क्या लगता है, मैं कर लूंगा और मेरा भी हो जाएगा. So is there really a need of a dedicated coach or not? राइट, क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होगा, राइट? मतलब क्वेश्चन पेपर में भी सेम हो सकता है लेकिन आंसर सबके डिफरेंट होंगे. सो मेरे को जो प्रॉब्लम है मेरे बॉडी को, उसको जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वही प्रॉब्लम हो. सो इट कैन लीड टू, मतलब मैं बता दूं तो उसको जरूरत नहीं है वो चीज की, तो इट कैन अफेक्ट हिम. सो आई वुड से प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर कोचिंग के साथ ये चीजें करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद सम XYZ सोर्स. सबकी मतलब बॉडी अलग होती है, सबकी बॉडी एक पर्टिकुलर चीज को कैसे रिएक्ट करेगी वो सबका अलग होता है. तो इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि आप अपने हेल्थ कोच के साथ कॉन्स्टेंटली कन्वर्सेशन में रहो. जो भी आपके प्रॉब्लम है उनको पिंग कर दो, जैसे हम लोग आपको करते थे दीपक. आई डोंट नो कितने बार आपका मोबाइल मतलब हमारे पिंग के वजह से आपको डिस्टर्ब होता था, बट यही था कि हम लोग जब भी कुछ भी डाउट है तो हम लोग तुरंत आपको पिंग करके पूछ लेते थे. तो वो तो इंटीग्रल पार्ट हो गया था कि पूछ के ही करना है. सो यस, कोच तो मस्त है. I remember every single chat message interaction we had, how हमारे एक घंटे कॉल भी चलते थे, and I loved those conversation because I like to add value into people's life, and every GFC coach likes to add value into people's life, and that is how we dedicated. It is not only your project of it is our project, and we work together with the people, and that is when the best happens. So आपने बात की ऐश्वर्या about the problem and challenges. Would you like to share किस type की challenges आपको आए and how did you overcome those? Along with obviously my suggestion. राइट. सो जैसे लेवल 1 में हमने स्टार्ट किया था तो सैलड्स वगैरह में पहले इतना नहीं मतलब मैं जब सैलड पहले खाती थी तो मैं मतलब पता नहीं खा ही नहीं पाती थी पहले तो ज्यादा. रोटी सब्जी ये सब ठीक से खा पाती थी, लेकिन सैलड का इतना उसकी तरफ मतलब जाती ही नहीं थी मैं ज्यादा. तो बट करेक्ट न्यूट्रिशन इंटेक के साथ मतलब मैं खा पाती थी और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता था पहले. और थोड़ा गैस होना वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स होती थी मुझे सिर्फ सैलड पे ज्यादा खाया तो वो भी मैंने पहले ट्राई किया था. आपने जो पहले पूछा ना, आपने पहले क्या ट्राई किया था, तो सैलड इंटेक बढ़ाना मैंने तभी भी ट्राई किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने तब फेस की थी जो बाद में नहीं हुई मुझे जीएफसी प्रोग्राम में आने के बाद. तो ये एक मुझे याद आ रहा है ये प्रॉब्लम फेस किया था. तो सलाद से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया, एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्या इस प्रोग्राम में सिर्फ सलाद ही खाना पड़ेगा या बाकी चीज भी खाने मिलती है. रोमिल हैज ऑलरेडी एड्रेस दैट. ऐशा, यू वुड लाइक टू शेयर? आपने सलाद की बात की, क्या सिर्फ सलाद ही खाना है या और भी कुछ खाना होता है? नहीं, जो हम रोज खाते हैं वही हम लोग खाते थे. ऐसा नहीं कि सैलड ही खाना है आपको. सैलड, स्प्राउट्स और दाल चावल ये सब खाते थे हम लोग. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलड ही खाना है आपको.
So actually, guys, every nutrition plays a different role in our body. So with your coach, you have to actually understand कि किस किन nutrition की जरूरत है body में, and depending upon the combination of food जो खाने पीने से मिल सकता है, जो खाने पीने से नहीं मिल पा रहा है, या जिससे दिक्कत हो रही है, उससे उसके support में nutrition आ गया. Along with that, you have to design your program so that कि आपके body को सारे nutrition मिल रहे हैं, जो भी required है. अगर आप सारे nutrition नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं body deficiency mode में चले जाएंगे, problem challenges होने लगेंगे. That leads to other problems. आप कमजोर हो जाओगे. And our goal is not to become kamjor. Our goal is to become fit and healthy without kamjori. I hope तुम दोनों कमजोर नहीं हो, right? You have improved your strength. Right, एनर्जी definitely. लेवल भी बहुत बढ़ गई है, दैट इज Absolutely. अच्छा, इसी की बात पे एक और क्वेश्चन था कि क्या हमें भूखा रहना पड़ेगा इस प्रोग्राम में? कई कई बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि आप खाना कम खाओ, बोलेंगे कम कैलोरीज लो, ज्यादा कैलोरीज बर्न करो, तभी तो वेट लॉस होगा. What is your experience in that perspective about hunger? मतलब मैंने तो मेरा पहले ही आंसर कर दिया है, मैं तो भूखा नहीं रह सकता. मतलब तो ऐसा तो कभी नहीं था कि मैं कभी भूखा रहा हूँ. मतलब मैं तो रोज खाता था, मैं तो आपको फूड प्लेट भेजता था, आप भी देखते थे, मैं सब खा रहा हूँ. मतलब तो मुझे तो ऐसा कभी ना कि मैं कभी भूखा रहा हूँ, मतलब नेवर. और मैंने आपको ये चीज पहले भी पूछी थी कि पहले दिन, हाँ. पहले दिन जब कंसल्टेशन, मतलब हम जब समझ रहे थे पूरा, मैंने आपको ये पूछा था कि हमको बंद करना पड़ेगा क्या खाना. तब आपने मतलब एक स्माइल दी थी कि ऐसा, मतलब क्योंकि मैं XYZ सोर्स पे पढ़ के आया था कि नहीं बंद करना. बट I यस, understand. कभी Absolutely. So, yeah, sorry. नहीं, कभी मैं भूखा तो मैं रह नहीं सकता. मतलब खुद ही भूखा नहीं रह सकता मैं. Absolutely. So हर किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए. अगर आपको भूख लग रही है, इसका मतलब your body is not able, मतलब energy lack हो रही है ना. So you need energy source. So God has given us a great mechanism of storing energy inside our body, and that is called storing body fat. Body fat is nothing but a stored potential energy. We have to learn how to utilize that. उसको जाके जलाना नहीं है. We don't need to burn the fat. We actually need to understand कि how can we tap into the saved resources or saved potential energy. उस potential energy को हम use करना सीख जाएंगे, then there will be no challenge like hunger, भूखा रहना है, or things like और भी चलता है like fasting करना है. Everything works provided you understand the root behind it, fundamentals of it, है ना. So our absolutely goal is to start using our own body fat, and that is when you will start losing the body fat. Thanks. So it has been a great so far. You have been answering so many questions. A very important question I want you guys to address, or people have been asking ki, why didn't you go ahead with the approach कि भाई पहले ऐश्वर्या का गोल था ना, तो ऐश्वर्या कर लेती है, ऐश्वर्या का हो जाएगा, उसके बाद मैं करता हूँ. After the transformation, what do you feel the importance of transforming together as a couple? Starting and transforming together. हाँ दीपक, तो पहले यही डिसाइडेड था कि मैं स्टार्ट करूंगी और देखते हैं फिर, मतलब इवेंचुअली रोमिल विल ज्वाइन या फिर मेरा होने के बाद रोमिल विल ज्वाइन. लेकिन जब हम लोग आपके साथ फर्स्ट कॉल में आए तो हम दोनों को ही लगा कि दोनों का ही मतलब जरूरत तो उतनी ही है, तो फिर ऐसा क्यों पहले और बाद में, राइट. और जब भी हम दोनों स्टार्ट करेंगे तो दोनों मतलब ऐसा हो सकता है कि एक जन कहीं ना कहीं कम पड़े. जैसे मैं नहीं यार आज एक्सरसाइज नहीं करती, नहीं उठती आज, ऐसा. तो रोमिल विल भी देर कि नहीं करना है तो साथ में करना है और अच्छे से करना है. और इस मामले में तो रोमिल को ही मैं क्रेडिट दूंगी कि जहाँ पे भी मैं कम पड़ी, रोमिल वॉज ऑलवेज देयर टू, मतलब एक पुश चाहिए होता है कहीं ना कहीं, और फिर हम लोग कर लेते हैं. बट उसके लिए तो ऑल क्रेडिट गोज टू रोमिल. तो यही फायदा था कि हम लोगों ने दोनों ने स्टार्ट किया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के सही से कर लिया हम लोगों ने. I like this about both of you guys. Like मैंने भी जब अपने health improvement journey start की थी, I started along with my wife as well, Sarita. So we started together, and that's why I always recommend every single person कि आपके अगर spouse है, irrespective of वो fit भी होंगे, उनको कोई जरूरत भी नहीं होगी चाहे weight loss है किसी भी चीज की, but it is good, everything you can do together. जब आप साथ में करते हो, everything you have a colleague with you or you have a partner with you, so you are not like left alone. जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे, so we had friends, that's why we enjoyed our college studies or school studies. बिना दोस्तों के सिर्फ हमको अकेले रख दिया जाए टीचर के साथ, तो बड़ा difficult challenge है. And you shared other important point as well, those were absolutely required.
let us talk about the results. You got the results जो आपने I showed in the transformation flyer as well. Would you like to share any other than those क्या problems आपकी ठीक हुई apart from weight loss and आपका pre-diabetes भी reverse हुआ, आपका respiratory tract भी improve हुआ. Other than that, what improvements you saw? मेरे केस में तो मुझे मतलब एक्सरसाइज नहीं करने का मेरा एक ही था कि सुबह मेरे से उठना ही नहीं होता था, एनर्जी नहीं लगती थी सुबह उठने की। तो ये मतलब बाद में मुझे समझा कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मतलब सोए हैं हम लोग 8 घंटे रात को और फिर भी उठने के बाद एनर्जी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर ये मेरा एक पहले इशू था, बट जब से मतलब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, जैसे लेवल आगे बढ़ती गई ना, मतलब मुझे फील होता था ये कि एनर्जी अच्छी है मेरी, और ऐसा खाने के बाद, लंच के बाद नींद नहीं आ रही है। नहीं तो पहले वो भी एक इशू था कि लंच के बाद ज्यादा कंसंट्रेशन से मैं कर नहीं पाती थी काम। तो ये एक मुझे ये इशू भी मेरा सॉल्व हो गया, एनर्जी लेवल हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली। Yeah, and for me मतलब प्री डायबिटिक्स तो डेफिनेटली रिवर्स हुआ। सेकंड आई वुड से एनर्जी लेवल, मतलब एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मैं ज्यादा खेल नहीं पाता था, बट अब तो मैं 2-2 घंटे भी खेल लूँ, मतलब मेरे को कोई बोल दे मैं 3 घंटे भी खेल लूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और आके घर पे काम वाम सब, ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड इज लाइक आई हैव ग्रे हेयर्स, मतलब बचपन से ही। सो वो डेफिशिएंसीज बढ़ती गई बॉडी में, और कैसा है वो रूट से थोड़े वो होते गए, मतलब वीक होते गए। एंड हर तरह आपका का साथ मैंने, आपका साथ छोड़ते चले गए. हाँ हाँ हाँ, हम दोनों का जम नहीं रहा था पहले से, तो फिर अभी हम दोनों साथ में आ गए। मतलब वो न्यूट्रिशन पे काम किया बेसिकली, जो डेफिशिएंसीज थी बॉडी पे, राइट, वो ही हमने उस पे काम किया। तो पहले जैसे मैंने हर टाइप का मतलब हेयर कलर, अब अक्रॉस मतलब इंडिया में जितने भी हेयर कलर मिलते होंगे, राइट, फ्रॉम ब्रांड के या सब सब ट्राई कर लिया। बट अल्टीमेटली वो मुझे इसको अफेक्ट कर रहे थे, मतलब जो आपका थीन हो गए थे हेयर, मतलब थीन काफी, एंड उससे हेयर फॉल बढ़ गया था। बट जब से मैंने सब न्यूट्रिशनली सब बॉडी में जा रहा है प्रॉपरली, तो अब हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो गई, हेयर फॉल बंद हो गया, एंड अब हेयर्स भी मतलब थोड़े से थिक आते हैं, मतलब थिन नहीं है, क्वालिटी ऑफ हेयर्स हैज इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। एंड डाइजेशन हम दोनों का भी एकदम सही हो गया। या Absolutely. So I have known, मतलब रोमिल ने पहले बताया भी नहीं था कि उसको हेयर फॉल का चैलेंज है, बट आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स एंड आई रिमेंबर ही आस्क्ड, दीपक ये बाल भी कुछ कुछ झड़ रहे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एंड इट वाज ग्रेट टाइम सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम. आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन and talk little bit about pre-diabetes. So again, it's great always to see that reversing someone's diabetes. Romil, you want to share with this slide क्या होता है HbA1c टेस्ट, कैसे पता चलता है प्री डायबिटिक हो? गो अहेड. ओके, सो बेसिकली ये कुछ परसेंटेज होता है हमारे बॉडी में, सो विच इज कॉल्ड एज, आई मीन यहाँ लिखा ही है, मतलब ग्लाइकोस्लाइटेड हेमोग्लोबिन। सो ये हमारे बॉडी में एक मेजरमेंट बताता है कि हमारी डायबिटीज लेवल कैसी है, मतलब सो जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं, राइट, कि अगर हमारा वो परसेंटेज 5.7 से लेस है, so we are good, मतलब our body is functioning normally and we are not anywhere near to diabetes or pre-diabetes. अगर वो 5.7 से बढ़ के 6.4 तक जाता है तो it will be pre-diabetic, मतलब I would say stage 1 of diabetes, मतलब pre-diabetic को मैं stage 1 of diabetes बोलूंगा। एंड जब ये 6.5 से अबव हो जाता है तो इट इज कॉल्ड डायबिटिक, मतलब एक बार आप डायबिटीज में चले गए तो फिर बहुत से प्रॉब्लम, मतलब इट विल अफेक्ट योर बॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, सिर्फ डायबिटीज के कारण। सो जब हमने देखा कि ये मेरा 5.8 है, सो आई वॉज प्री डायबिटिक, मतलब तो एंड जब फिर मैंने, जब आई गेस ये टेस्ट है मेरी जैन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैन में ली थी मैंने, जो Yes, yes. दिस या सो जैन में ली थी, एंड देन आई डिड इट इन मई, क्योंकि All good, अप्रैल yeah. में, Yes. आई गेस मई में, या बिकॉज मई में बिकॉज ऑफ सर्टेन चैलेंजेस में वो कर नहीं पाया था टेस्ट वगैरह, तो मैंने फिर मई में करवाई थी। Absolutely. So तो Romil, how much time it took from five to overall, like you started in around January end, and then मतलब actually April में हो चुका था, but because of your challenges problem you could not do the test. So around 3 months लगे थे इस रिवर्सल के लिए. yes definitely, मतलब yeah. Absolutely. So if you actually guys focus upon the right nutrition, understand the root cause of this insulin resistance
and what this HbA1c is. Diabetes होने के पहले ही कैसे 90% of people doesn't know about their pre-diabetes. Actually, they come to know when they actually become diabetic. है ना? So you don't need to wait till go to diabetic. You can actually go and do this HbA1c test, very famous test. कितना पैसा लगता है रोमिल इसके लिए HbA1c test कराने के लिए? 300. Good. So it is a very cheap test and very famous nowadays. Everyone can do it and get to know कि आपका diabetic health कैसा है, and you can actually proactively work upon it and avoid this दलदल जो है diabetes का, a very disastrous problem and challenge in this today's world, and everyone deserves not to be diabetic at all. हम पूरे हमारी जिंदगी खत्म हो जाए तब भी irrespective of हम आपके parents को diabetes है या नहीं है, doesn't matter. If you take care of your health, you can avoid yourself having diabetic. My father was a diabetic person for many years. He's no longer more just because of that problem. But I am absolutely fit and healthy, and I am away from all this diabetes and problem. It's been great conversation so far, Roman and Aishwarya. And I would like to ask the next question. बहुत लोगों का होता है भाई खर्चा कितना हो, मुद्दे की बात पे आते हैं, कितना खर्चा होगा. So instead of sharing individual, आपने साथ में किया टुगेदर फॉर यू, पूरे ओवरऑल पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कितना खर्चा है आपको, आपका जो भी जितने भी रिजल्ट्स मिले सब कुछ मिला के? Yeah. So मेरा end to end I would say almost 55,000. So आप दोनों का मिला के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में 55,000 रुपए लगा? End to end, yes. Great. So what do you feel? मतलब ये महंगा है, सस्ता है, वर्थ है या नहीं है? मतलब health is priceless I would say. हाँ, इसका कोई प्राइस नहीं लगा सकते, क्योंकि जो आगे आने वाली प्रॉब्लम्स थी उसमें कितना जाते थे हमारे पैसे, वो हम लोग मतलब पैसे छोड़ दो बट मेंटली और फैमिली कितने डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माय डैड बिकॉज ऑफ डायबिटीज एंड किडनी प्रॉब्लम. तो जो 2 या 3 साल वो जो हमारे फैमिली के लिए कैसे गए वो मुझे पता है, तो इसका कोई प्राइस नहीं है उसके सामने. Correct. Absolutely great. And I always say that the only thing you get when you come to this world is your body, and the last only thing which is with you till your death is your body. And if आपकी बॉडी नहीं देंगे तो आप करोगे क्या करोगे उस पैसे को बचा के? So you actually need to, the first investment everyone should do is upon their own health, and उसके बाद आप सब कुछ दुनिया में करो, सेविंग करो और बहुत सारे पैसे कमाओ, अच्छा करियर बिल्ड करो, which absolutely on top. The base health is the base of our life, and that is what everyone should look upon. So I want to share with all the world is that Romin and Aishwarya have not only just a transformed beneficiary of GFC, they have actually become they have passed clear the course of GFC coach, and they have become GFC coach. So Rumesh, you want to share why did you decide to become a coach? Why didn't you just have transformation done? Yeah. So हम जब जर्नी में थे ट्रांसफॉर्मेशन की, so हमें मतलब couple of things are there. So पहली चीज थी कि मतलब हम हमारे आजू बाजू में देख रहे थे, मतलब काफी चैलेंजेस है लोगों को हेल्थ रिलेटेड, so हम क्यों नहीं हेल्प कर सकते उन लोगों को, हम भी हेल्प कर सकते. And secondly, we went to Goa to celebrate our transformation. तो वहां पे हमने देखा कि लोगों का इतना चैलेंजेस है हेल्थ का, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. मतलब किसी को मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल वर ओबेज ओनली. मतलब तो मैं देखा कि लोगों को चैलेंजेस बहुत है बट दे आर नॉट अवेयर. सो आई मीन जो जीएफसी का जो मिशन है, राइट, टू इराडिकेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स फ्रॉम द सोसाइटी. सो वी थॉट लेट्स कंट्रीब्यूट आल्सो, कि हम भी वो एक मिशन में कंट्रीब्यूट कर सके. सेकंड था कि जब हमने ऐश्वर्या के पापा का देखा कि सही माइंड अगर सही तरीके से अगर उनको गाइडेंस मिलता था, सो थिंग्स वुड हैव बीन बेटर एंड आई मीन कुछ डिफरेंट हो सकती थी. तो वहीं हमने सोचा कि नहीं, हमें भी ये चीज करना है, वी शुड हेल्प द सोसाइटी आल्सो. आई मीन हमारा कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. So that's where I mean we started engaging in. I mean we started studying and went through the GFC course and all. Absolutely. Our purpose in this life, in this world, is that to actually सारे प्रॉब्लम, ये जितनी मेंटल डिसऑर्डर्स है, कहेंगे ओबेसिटी, डायबिटीज, जितनी प्रॉब्लम्स है, इन सब का हर every person should be having the solution. It is should not be with only some few people. And
it can happen only with the education, every single person getting educated. I am so glad and happy that you decided that you want to contribute the way I decided few years before that I want to help people. सोचो अगर नहीं सीखता, मैं कुछ नहीं बनता, तो I don't know आपका क्या होता. So same way the day will come when you will be transforming people. You have already started. You will transform so many people and they will be thankful to the, we all are absolutely thankful to the community Global Fitness clan and for ourselves. That is the way we can contribute to the society back. It was great conversation. I'm just loving it, but we are running short of time. So before we close off, last question: what message you would like to give to this world? The last message you have given already answered every question. A last message for the world. Individual. Let's go with Roman. So first message I would like to give: never ignore your health. मतलब it will give you signals, but never ignore that, because आगे चल के एक रुपए का वो 10 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा आपका बिल मेडिकल का, सो आपको भी पता नहीं चलेगा. सो हेल्थ आप प्रायोरिटी पे लीजिए, अदरवाइज इट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. मतलब health is wealth. That's what I mean. Even right now, when Rakesh Jhunjhunwala passed, right? He also said the same thing. मतलब he is a billionaire guy, right? But वो भी right. He was I mean, yeah. So उन्होंने भी यही बोला कि मेरा वर्स्ट इन्वेस्टमेंट हेल्थ पे ही था. मतलब उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया लेकिन हेल्थ पे कभी इन्वेस्ट नहीं किया. तो मतलब अगर आप सब लग्जरी में इन्वेस्ट कर सकते हो तो आई मीन मैं बोलूंगा कि हेल्थ पे इन्वेस्ट करना इज मच बेटर देन इन्वेस्टिंग ऑन लग्जरीज. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. अगर आप दोनों का इंडिविजुअल कॉस्ट देखा है तो इट वाज अराउंड 27,000 रुपीज. इससे ज्यादा महंगे तो आजकल लोगों के मोबाइल हो जाते हैं, जो कि 2-3 साल में 2 साल से ऊपर चलते नहीं है. जो बॉडी जिंदगी में चलने वाली है इसके ऊपर इतना, आई जस्ट फील द चीपेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू एवर, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. ऐश्वर्या, योर लास्ट मैसेज टू द वर्ल्ड. मेरा मैसेज भी इन पैरेलल लाइन विद रोमिल्स मैसेज कि लिसन टू योर बॉडी. हमारी बॉडी हमेशा सिग्नल देती है कि ओके सुबह उठ के भी एनर्जी लेवल नहीं है, उसके बाद लंच के बाद नींद आ रही है, पॉट बेली, ये सब सिग्नल्स ही है. तो जैसे आप व्हाट्सएप के पिंग को तुरंत देख लेते हो, उसको रिस्पॉन्ड करते हो या फिर इग्नोर करते हो, जो भी करते हो, तो इसी तरह उतना ही ध्यान आप आपके बॉडी को देंगे. तो मतलब इट इज अवर टेम्पल. हमारे बॉडी हमारी टेम्पल है, उसको आप कितना साफ रखते हैं, कितना एक्टिव रखते हैं, उस पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है. तो व्हाट्सएप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सोशल मीडिया को या अपनी बॉडी के सिग्नल्स को, ये आप डिसाइड करो. इट इज ऑलवेज अबाउट अ चॉइस. What a great message that your body is a temple and आप अपने मंदिर को या आपके टेम्पल को कभी गंदा नहीं रखते. And that is what you have to take care of your health. It has been a great conversation, Robin and Aishwarya. You have answered all the questions so well. I'm sure सभी लोगों के सारे doubts clear हो चुके हैं. ये live session देखने के बाद या recorded जब भी लोग देखेंगे, they will absolutely neither have any doubts, queries, but actually they would be inspired to transform their own health, take charge of their own health. You do from anywhere, GFC से करो, मेरे साथ करो, किसी के साथ भी करो, but you improve your health. That is what the message I want to give to this world. Thank you so much, Shobhaneshwara, once again. I'm sure you're going to rock with your, not only with your health, but transforming other people's health as well. And all of you guys, अगर आप यहाँ तक आपने इस interview को देखा है, do not go away without listening to this beautiful, amazing song. And we will say with that, goodbye, Roman, Aishwarya. Thank you, Deepak. हमारा first ever interview. Thank you. Great. So I'll start the music and the slide.
Guys, I'm not able to actually share sound, but I'm sure you loved this transformation. And with that, we will say goodbye to all of you. So sorry for not being able to share my music. There was some challenge with the audio, but I'm sure you loved this transformation. And with that, we'll say goodbye. All of you enjoy and have the best of health forever.